حیدرآباد میں تو شو روم ہے. تو انہوں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ کراچی آتے ہیں, حیدرآباد سے آل دا وے رجسٹر کراتے ہیں؟ سر بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں اور پچھلے 5 سال سے سیم ہی جواب میں دوں گا. آئی کانٹ فورس پیپل. اگر آغا صاحب گاڑی خریدتے ہیں شکارپور سے یا حیدرآباد سے, میں ان کو فورس نہیں کروں گا کہ آپ ادھر سے رجسٹر کروں. تو سر یہ آدمی کے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے جو گاڑی خریدتا ہے وہ کدھر سے رجسٹر کرانا چاہے, اس کی مرضی ہے, فریڈم ہے سر, جدھر سے کرائے. تو دیکھیں سر جیسے موٹر سائیکلیں لوگ اپنے حیدرآباد سے بھی رجسٹر ہو رہی ہیں, بدین میں بھی ہو رہی ہیں, جدھر کدھر. مگر اگر کار اونر جو کار خریدتا ہے سر اس کو ٹوٹلی فریڈم ہے, وہ کراچی سے کرائے, کشمور سے کرائے, حیدرآباد سے کرائے, سکر سے کرائے. Yes sir, کدھر سے بھی کرائے. I can't force anybody. Facilities are available throughout. Facilities are available. Universal number ہے, کراچی کا نمبر, سندھ کا نمبر ٹوٹلی ایک ہی ہے. جدھر بھی جائے گا وہ سیریز اس کو ادھر بھی ملے گی. مگر ہر ایک انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے جدھر سے رجسٹر کرانا چاہے. کراچی کے نمبر پلیٹ سے کوئی ڈائمنڈ شائمنڈ لگے ہوئے ہیں اس لیے لوگ یہاں رجسٹر کرتے ہیں. سر اٹس اپ ٹو دی پیپل کہ وہ کہاں سے رجسٹر کرائیں. We can't force them. پورم کی گاڑی ہم حیدرآباد سے کریں گے. جی سر, تھینک یو. سر میرا سیکنڈ سپلیمنٹری ہے. اب جس طرح منسٹر صاحب نے سر فرمایا اپنے پہلے سوال کے جواب میں کہ یہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگ کہیں سے بھی جا کے اپنی گاڑی رجسٹر کرائیں, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے جواب میں نظر بھی آ رہا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ 6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں رجسٹر بالکل بھی نہیں ہو رہی ہیں. لیکن سر میرا یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو انہوں نے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو یا میرپور خاص ہو یا اور کسی اور شہر میں بھی, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تو لگ رہا ہوگا سارے سیٹ اپ کے اوپر, ان کی سیلریز کے اوپر. وہاں پہ بجلی استعمال ہو رہی ہوگی, وہاں پہ کچھ ظاہر ہے کہ کچھ انہوں نے رینٹ پہ جگہیں لی ہوئی ہوں گی. تو وہ سارا ایریا وہ سب اس کو شٹ ڈاؤن کیوں نہیں کر دیتے ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ رجسٹریشن بالکل نہیں ہو رہی ہے 6 سال سے. تو اس طریقے سے کچھ عوام کا پیسہ بچ جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بند ہو جائے؟ ہاں, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سال سے کچھ اگر بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ, لیکن آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا نا, وہ تو وہاں کے لوگوں کی رائٹس ہیں. ان کے پاس کوئی ایسے پلانز ہیں کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ کسی طرح اگر یہ بچ جائے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا. میرے بھائی نے کمپلیٹ سوال پڑھا نہیں میرے خیال میں. اصل میں ان کو آپ سے بہت زیادہ پیار ہو گیا ہے. بالکل سر, کہہ رہے ہیں کہ بجلی چلتی ہوگی, آپ بھی پیار کیا کریں نا تو دوستی ہو جائے گی. سر یہ ایک تھرو آؤٹ ایک سسٹم ہے, سینٹرلائز سسٹم ہے. ادھر اگر کارز رجسٹر نہیں ہوتی تو موٹر سائیکل غریب کی سواری تو رجسٹر ہوتی ہے نا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بند کریں اور غریب آدمی وہ بھی آ جائے کراچی پھر رجسٹر کرانے کے لیے. غریبوں کا تو احساس ہے ہی نہیں ان کو, غریبوں کا تو احساس ان کو ہے ہی نہیں. وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی موٹر سائیکلوں پر یہ لگاتے ہیں. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ سائیکلوں پر آ جائیں. جو ملک کے حالات کر رہے ہیں واقعی لوگ سائیکلوں پر آ جائیں گے. سر سب چیز بند کر دیں. لوگ کراچی میں علاج کروانے آتے ہیں, پنجاب کے آتے ہیں تو پنجاب کی ساری ہاسپٹلیں بند کروا دو. سکر میں NICD میں جاتے ہیں علاج کروانے تو پنجاب کی ساری ہاسپٹلیں بند کروا دو. پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں آتی ہے. اٹس امیزنگ NICD کا جو پرفارمنس ہے. لوگ تو پنجاب سے آتے ہیں, لوگ بلوچستان سے آ رہے ہیں NICD میں یا علاج کرانے, تو آپ اس کو منع تو نہیں کرتے کہ جی وہ آپ جائیں جا کے کوئٹہ کی ہاسپٹل بند کر دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. جی کوئی اس ٹائپ کا اور سوال ہے تو بھی پوچھ لیں. سر جواب دے ہی نہیں سکتے میرے سوال کو, یہ تو گھما پھرا کے نارتھ بولیں گے ساؤتھ کا جواب دیں گے. آپ نہیں مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی سر, I have to decide. جی سر ویسے تھرڈ سپلیمنٹری اس کے علاوہ جو وائن شاپ سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ آ نہیں رہے ہیں, اس سے بھاگ رہے ہیں. سوال کریں ایک تو آپ کا سوال ہے نہیں. جی سر, تھرڈ سپلیمنٹری میرا سر سوال یہ ہے ان سے کہ منسٹر صاحب اس وقت غریبوں کی اور عوام کی فکر کی بات کر رہے تھے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اندازاً 1.5 سال سے کراچی کے اندر جو ظاہر سارے لوگ تو یہاں پر آ رہے ہیں رجسٹر گاڑیاں کرانے کے لیے, اور سر رجسٹریشن کراتے ہیں, وہ بیچارے پھر واپسی حیدرآباد چلے آتے ہیں, باقی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد سر لوگوں کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اپنی نمبر پلیٹس کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو اپنے پیسے لے لیے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں سر شہر میں گاڑیاں گھوم رہی ہیں جن کو نمبر پلیٹس نہیں ملے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ پولیس, ٹریفک پولیس اس میں چلان کرتی ہے, کیونکہ اس میں یا تو ادھر اس کے اندر تقریر کر رہے ہیں نا, ابھی اتنی لمبی تقریر نہ کریں نا, شارٹ کریں اس کو. مجھے کچھ اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا. جی جی سر میں سمجھ رہا ہوں, 6 سال ہو گئے آپ کے ساتھ. میں سعید احمد کو کہتا ہوں ٹرانسلیٹ کر کے پشتو میں آپ کو بتایا. جی سر, آپ ویسے بڑے زبردست طریقے سے بیچ میں ٹوکتے ہیں, اسپیشلائز کرتے ہیں آپ اس کے اندر. کتنا گلا دبائیں گے ہمارا. آپ ہنس تو پہ گئے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہنسے ہو. اچھا سر, میں چاہتا ہوں آپ ہنستے رہو, خوش رہو,
मुकेश चावला के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, ये अच्छी बातें होती हैं। मेरा दिल भाई है बनाना सर, चाहिए। मेरा भाई है, ऐसी भाई कोई है ना, बात- भाइयों वाला प्यार में बिल्कुल कह रहा हूँ, और सर, मैं like a क्या brother कह to रहा me, हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी भाइयों वाला प्यार कह रहा हूँ, ये अच्छी बात होती है, भाईचारा होना चाहिए ना। जी शुक्रिया सर। वो अंग्रेज भी कहता है लव दाई नेबर, तो आप नेबर है ना उनके अभी यहाँ पे, और इस सेम रो में आप भी हैं, तो यू शुड लव ईच अदर। जी सर, आपकी इजाजत हो तो सर तीसरा सप्लीमेंट्री मैं पूछूं इनसे, जी आपकी इजाजत हो तो सवाल करूं। सवाल करें ना आप। अच्छा सर, ये है कि मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि लोगों की मर्जी है वो कराची में आके अपनी गाड़ियां रजिस्टर कराएं। सर हजारों की तादाद में गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध के जो लोग खरीदते हैं आगे गाड़ियां, उनको सर नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही हैं, हजारों की तादाद में ऐसी, उसमें प्लास्टिक या स्टील की प्लेट्स लगी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं क्योंकि ओरिजिनल प्लेट्स नहीं होती हैं। उसमें लास्ट टाइम जो मिनिस्टर साहब ने रीजन दिया था वो ये था कि इनके पास ऐसी बहुत सारी नंबर प्लेट्स हैं जो लोगों ने अभी तक रिसीव नहीं की हैं, जो पुरानी, इनके पास जगह नहीं है रखने की। अब मेरा ये सवाल है कि जिन्होंने नहीं लिए हैं वो तो ठीक है, उनका कसूर है, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको नहीं मिल रही हैं प्लेट्स, उनका क्या कसूर है? उनके लिए अभी तक आपने कोई फैसिलिटी कोई ऐसी तैयार की जहां पे प्लेट्स आप नहीं रख सकें? कोई नया वेयर हाउस रेंट कर लें, सर उसमें रख बिल्कुल, लें। लास्ट टाइम भी जैसे खुरम भाई ने सही बात बोली, हमने बोला था 70,000 के करीब नंबर प्लेट्स गाड़ियों की अवेलेबल हैं और स्टोरेज की जगह कम थी। सर उस जब वेबसाइट पर हमने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि these नंबर प्लेट्स आर अवेलेबल, तो उसके बाद काफ़ी फर्क पड़ा, काफ़ी लोग आए अपनी नंबर प्लेट्स ले गए हैं। और सर हमारा नया टेंडर हो चुका है, नया टेंडर अवार्ड हो गया है और काम शुरू हो गया है, और जो बैकलॉग था हमारा नंबर प्लेट्स का, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले 2 महीने में बैकलॉग भी एंड अप टू डेट भी हो जाएगा। जी जदून साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि कराची में जो 39,096 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई हैं, तो इनमें से कितनी गाड़ियां बाहर से आई हैं? देखिए कितने काम की बात की उन्होंने, शॉर्ट एंड ब्रीफ, समझ गए आप? बिल्कुल सर, ये इंपोर्टेड गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि इंपोर्टेड गाड़ियां कितनी आई हैं। सर मैं एक काबुली की नहीं, इंपोर्टेड काबुली तो आपके शोरूम से आती है भाई। सर हाँ, इस्लामाबाद में बहुत आई होंगी, पंजाब गवर्नमेंट को बोलो पकड़े उनको। तो सर हाँ, इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से सर इसमें बिल्कुल इंपोर्टेड गाड़ियों का फिगर इस वक्त मेरे पास है नहीं, आई जस्ट प्रोवाइडेड विद हिम। मगर सर ये मैं जरूर एक चीज बयान करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से इंपोर्ट गाड़ियों की बहुत कम हो चुकी है और हमारी रजिस्ट्रेशन भी 40% से 50% डाउन हो चुकी है। मतलब जो अगर साल में 1 लाख गाड़ियां होती थी तो पिछले साल 50,000 गाड़ियां हुई हैं। तो ओवरऑल एक डाउनफॉल हुआ है गाड़ियों की इंपोर्ट में भी और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भी। और जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी इसमें से इंपोर्टेड है, वो मैं भाई को डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए जदून साहब आपको समझ जाते हैं, हकीकत ये। जी जावेद साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो फिगर्स मिनिस्टर साहब ने प्रोवाइड की हैं 6 मंथ की हैं, 6 मंथ की फिगर्स हैं 2018 की जनवरी से लेकर जून तक की। अच्छा, अब इसमें जो फिगर्स मैं देख रहा हूं कि 1.958 बिलियन जो है कराची से इकट्ठा हुआ है और बाकी 2 डिवीजन्स हैं उनसे 154 मिलियन इकट्ठा हुआ है। दैट इज 0.8% ऑफ दिस टैक्स जो कराची से इकट्ठा हुआ है, विच रिफ्लेक्ट कि जी कराची टैक्स जो है सारा का सारा कराची से ही इकट्ठा होता है। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि ये पूरे साल में इसकी कलेक्शन कितनी है? टोटल मोटर व्हीकल टैक्स को हम सही तो 3 गाड़ियों को आपने दिया है ना, 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल, जो टोटल मोटर व्हीकल टैक्स की कलेक्शन है उसमें कराची से कलेक्शंस कितनी है और बाकी सिंध से कलेक्शंस कितनी है? सर कराची भी सिंध का हिस्सा ही है और मेजर कलेक्शन बिल्कुल कार्स और बसेस के टैक्स के हवाले से 1 साल का फिगर मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि टोटल एक हमारे को बजट दिया जाता है। बजट के दौरान हमें टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप मतलब मोटर व्हीकल के हेड में इस साल आप 50 अरब कमाएंगे या 5 अरब कमाएंगे, गवर्नमेंट को इतना टैक्स कलेक्ट करके आपको देना। वो अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, जो फिगर आपने पूछा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, इस वक्त नहीं है। आई जस्ट गिव इट टू यू व्हाइल दिस क्वेश्चन आउट। जी ईद सूर साहब। थैंक यू सर।
सर मुंहिंजो सवाल आहे त जेको कार बसिस ऐं मोटर साइकिल तव्हां खे फिगर्स ॾिनो आहे हिन जी रजिस्ट्रेशन फ़ी केतिरी आहे हिन जी कार जी केतिरी रजिस्ट्रेशन फ़ी आहे बसिस जी रजिस्ट्रेशन फ़ी केतिरी आहे ऐं मोटर साइकिल जी केतिरी आहे हीअ 2018 जी आहे लेकिन 2019 में फेडरल जो टैक्स वधण खां पोइ 18 में केतिरी फीस तव्हांजी रजिस्ट्रेशन फ़ी हुई छा 19 में जेको तव्हांजी फीस आहे उहा वधाए छॾी आहे या सेम फीस आहे इन जी थोरी जेको तव्हां सवाल पुछो आहे उनमें एक्सक्यूज मी सर मैं पहले जावेद भाई की बात का जवाब दे दूं सर 7157.224 मिलियन ये टोटल फिगर कलेक्ट हुई है जो 17-18 में पूरे साल का रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ 7157.224 मिलियन जी बेसिकली ये अमाउंट जो आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं और सर जो अदी हिस्सों ने सवाल पूछा उस कराची भी सिंध का हिस्सा ये पूरे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हम तो सर अभी हीरशो बहन ने जो सवाल पूछा कि कारों के ऊपर होता है टोटल अमाउंट के ऊपर 4% रजिस्ट्रेशन फीस लगती है कमर्शियल्स पर 2% होती है मोटरसाइकिल पर लाइफ टाइम फिक्स होता है वो है 1800 रुपए ये होता है सिंध गवर्नमेंट के टैक्सेस उसके अलावा जो पिछले इस बजट से और पिछले बजट से जो विथ होल्डिंग टैक्स की मद में काफी चीजें इंक्रीज की गई हैं जैसे पर सीट पर किसी गाड़ी पर 15,000 रुपए रख दिए गए एनुअली फिर जब उसका अपना वापस आती है टैक्स भरने के लिए 15,000 रुपए पर सीट पर अलग तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट का अमाउंट है ये भी हम ही कलेक्ट करते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की मद में जो होता है बाकी जो हमारे यहाँ है इस साल हमने कोई इस पर रेट्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर नहीं बढ़ाई ये फिक्स है 4% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द परचेज पर होता है जी सईद अहमद नहीं अभी तो हो गया जावेद साहब शर्माने की कौन सी बात है बता दिया ना आपको बता रहे बैठ हैं जाइए। आपको तो कभी यकीन भी नहीं आता हम बोलते हैं कि ठट्ठा का ड्यूल कैरेजवे भी हमने बनाया आप कहते हैं नहीं वो भी आपने नहीं बनाया सब पता नहीं इनके सवाल ही अजीब है आप छोड़ देना सवाल हो गए जी सईद साहब मेहरबानी स्पीकर साहब मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इन्होंने यहाँ पे हैदराबाद डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन के अजला की तरतीबवार रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद और कलेक्टेड अमाउंट लिखी है लेकिन इसमें कराची डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी उस तरतीब के साथ हमें नहीं बताया गया है तो मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि इस अरसे में दौरान जिला मलीर जिला गरबी और जिला सेंट्रल में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई और कि उनसे वो इन डिस्ट्रिक्ट से कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई और कितनी रकम हासिल हुई सर ये रजिस्ट्रेशन कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती है कराची में एक सिविक सेंटर है केडीए बिल्डिंग है जहां पूरे कराची के या पूरे सिंध के लोग आकर उधर ही रजिस्टर कराते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऑफिसर्स नहीं होते हमारे रजिस्ट्रेशन के तो ये एक सेंट्रलाइज जगह पर है जो भी आदमी आए शोरूम किधर से भी ले चाहे वो साउथ से शोरूम से ले वेस्ट से ले ईस्ट से ले आएगा उधर सिविक सेंटर में ही रजिस्ट्रेशन का राना अंसार साहब थैंक यू सर सर मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि जो इन्होंने फिगर कार बसेस और मोटरसाइकिल के दिए हैं मैं पूछना चाहूँगी कि जो आजकल पूरे सिंध में चिंची जो है वो बहुत तेज़ी से लोगों का जरिया बनी हुई है क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है या उसकी रजिस्ट्रेशन क्योंकि मैं पढ़ रही थी और ये भी आ रहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन अभी इस चिंची को बैन कर दिया गया क्या ये खबर सही है या इसकी रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया लेकिन जी शुरू में जब इसका चिंची का रजिस्ट्रेशन का मामला आया था तो हम रजिस्टर नहीं कर रहे थे क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है उनके पास जो गाड़ी की होती है फिजिकल फिटनेस क्योंकि ये एक कमर्शियल यूज में होगी पब्लिक व्हीकल बन जाती है कि लोगों को उठाना पिक करना ड्रॉप करना तो उसके कुछ सेफ्टीज होती हैं गाड़ियों की जो जिनके अपना अगर वो सर्टिफिकेट ना हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तो तब तक हम अलाउ नहीं करते रजिस्टर करना मगर बीच में फिर आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इनको रजिस्टर किया जाए तो उस तहत उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और पूरे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक वो अवेलेबल है फैसिलिटी कि कोई भी आए चिंची रक्षा अपना रजिस्टर करा सकता है और रजिस्ट्रेशन हो रही है उनकी क्वेश्चन नंबर 1410 रबिस्तान खान सर ऑन हिज बिहाफ वो डॉक्टर इमरान शाह साहब खड़े हो रहे थे आप पहले खड़े हो गए तो जी ऑन हिज बिहाफ वो तो खत्म हो गया ना आई थॉट यू वांटेड
to be on his behalf? No, I don't want to be on his behalf. Never mind. It's okay. आप रबिस्तान खान नहीं बनना चाह रहे? नहीं, शुक्रिया बहुत. ठीक है, फिर किसी और जिसको बनना है वो बन जाए. Anybody else? जी आप बनेंगे, ठीक. So question number 1410. जी Sir, answer may be taken as read. देखिए एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं, ये गलत बात है. मुकेश भाई का दिल अच्छी बात है, मतलब उसका ये है कि अच्छी बात है. यू शुड बी स्माइलिंग ऑल द टाइम. अब गुस्सा करना और एक दूसरे को मतलब मैटर, बाहर जाएंगे आप, खाना एक साथ खाएंगे, आप भी जाते रहते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, तो उनको भी बुला लें, वो भी आपको बुला लेंगे. ठीक है सर. उनके पास तो बहुत कुछ है. जी सर, मैं मिनिस्टर साहब से मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि ये वैल्यूएशन किस तरह करते हैं, ये जो इंपोर्टेड व्हीकल्स होती हैं उनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह वैल्यूएट करते हैं? जिस तरह इन्होंने लिख तो दिए कि रजिस्ट्रेशन फीस किस तरह होती है, तो ये वैल्यूएशन का जरा प्रोसीजर बता दीजिए क्या है इंपोर्टेड कार्स का. सर, लोकल और इंपोर्टेड दोनों का या खाली इंपोर्टेड? इंपोर्टेड. सर, गाड़ी जापान में खरीदी जाती है, फिर जहाज पर चढ़ती है, फिर पानी के जहाज के थ्रू कराची पोर्ट पर आती है. कराची पोर्ट पर जब उतरती है, कस्टम उसकी वैल्यू लगाती है, उसका डॉलर का रेट होता है, फिर वो वैल्यू फिक्स होती है, उस पर वो कस्टम ड्यूटी भरता है. जब कस्टम ड्यूटी भरता है तो वो गाड़ी की वैल्यू और कस्टम ड्यूटी मिलाकर उसके ऊपर हम लोग टैक्स लेते हैं, अपना जो टोटल वैल्यू ऑफ द कार होती है. आपने गाड़ी तो खरीदी होगी, जरूर आपको पता होगा. नहीं सर, मैंने लोकल गाड़ी ली, इंपोर्टेड नहीं. अच्छा सर, सेकंड सप्लीमेंट्री मेरा इनसे है कि इंपोर्टेड गाड़ियों का तो उन्होंने बता दिया. मैं इनसे पूछना चाहूँगा जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि लोकल गाड़ियों में तो बेसिकली अच्छा वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं. सॉरी, रजिस्टर्ड गाड़ी होती है. ठीक है, नहीं पूछ लें, दिल खुश कर. ठीक है. अच्छा सर, दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे अपने जवाब में बताया है कमर्शियल व्हीकल्स, वैन, टैक्सीज, रिक्शाज, इनकी ट्रांसफर फी के बारे में इन्होंने बताया है. अब इसमें इन्होंने लिखा है कि वजन के हिसाब से जो है ना ये लेते हैं अपनी ट्रांसफर फी. तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये बताएंगे मुझे वैन्स, टैक्सी, रिक्शाज का इनका वजन कितना होता है? सर, वजन लिखा हुआ होता है पेपर्स पर. आपको जिन जिन के वजन की डिटेल्स चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं. इस वक्त मेरे पास नहीं है कि चिंची का वेट कितना होता है या एक ट्रक का कितना वेट वेइंग होता है. मशीन भी होती है क्या? वेइंग मशीन होती है सर, वो उनके पेपर्स में मेंशन्ड होता है. पेपर्स में मेंशन्ड होता है कि फलाने का इतना वेट है, तो उस हिसाब से उनको टैक्स चार्ज किया जाता है. असल में उनको सब पता है, लेकिन वो आपसे प्यार इतना करते हैं कि आपसे बुलवाना चाहते हैं. कभी अपने ब्रोस्ट की दुकान पर भी नहीं बुलाते कि आओ ब्रोस्ट खाओ प्यार से. बुलाएंगे एक न एक दिन, आप तो बोले ना बुलाएंगे. उनको सर. आप भी एक न एक दिन बुलाएंगे, एक न एक दिन वो भी बुला देंगे, बात पक्की हो जाएगी. बड़ा मुश्किल है वैसे मैं करना. दोस्ती की बात कर रहा हूँ भाई, पक्की दोस्ती हो जाएगी ना. नहीं सर, दोस्ती इनके साथ है बिल्कुल, लेकिन सर जब बात आवाम की आती है, इश्यूज आते हैं, तो उसके ऊपर खाली थोड़ी बहुत हो जाती है, अदरवाइज निकलती है तो फिर दूर तक भी तो चली जाती है ना. चली जाती है. सर, नो अदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. बस देखें जी. एनीबडी एल्स? जी सर, आप मसलियत बड़ी अच्छी कराते हैं जी. मसलियत बड़ी अच्छे तरीके से कराते हैं. नहीं, अच्छी बात है ना. अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा तो है नहीं सर. ना. आपने जाके कि इनकी गाड़ी पे कब्जा किया है ना इन्होंने आपकी गाड़ी पे कब्जा किया है, तो झगड़ा तो है नहीं. तो ये प्यार मोहब्बत से हर चीज होनी चाहिए. मैं भी आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ सर. हाँ, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूँ. आप इतने अच्छे सवाल जवाब करते हैं. वो बेचारे रबिस्तान खान है नहीं और उसको आप लोग मिसयूज कर रहे हो, उसका नाम लेके उसकी जवाब उल्टे सीधे पूछ रहे हो. वो तो उसको पता चलेगा, वो तो नाराज हो जाएगा. हाँ, नाराज होगा. आप फिर राजी करा लेंगे ना. मैं उसको बताऊंगा क्या क्या हुआ था. जी सर, ये तकरीबन साल से ज्यादा हुआ, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं मिल रहा है. वो भी सिफारिश करे मिल जाए. सर, ये सिविक सेंटर जाता नहीं है, मैं क्या करूं. ये कहता है इधर लेकर आकर दे दो. अब ये काम तो मैं नहीं कर सकता ना. सिविक सेंटर जाए, अवेलेबल है सर. इसमें सर ही रोल अदा करेंगे. सर, ये मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि क्या सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मुंतकिली पर भी इन टैक्सों का इतलाक होता है या वो इनसे मुस्तस्ना है? नहीं जी, उन पर भी होता है, उन पर भी लागू है. चाहे किसी भी गवर्नमेंट दायरे की हो तो उनके भी बाकायदा, अगर सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां आती हैं रजिस्टर होने, तो SNJD से उनके पे ऑर्डर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू बनकर आते हैं और फिर वो SNJD अपने नाम पर रजिस्टर कराती है और उनका सालाना टैक्स भी भरा जाता है. तो ये रूल सबके लिए, नॉट फॉर प्राइवेट, गवर्नमेंट के लिए भी है.
असलम अबड़ू साहब, आपको सवाल नहीं करना है? आप जाएं, सिगरेट पी के आ जाएं वापस। जी, सिद्रा इमरान साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो ब्रीफ करेंगे कि क्या कोई इस टाइप की भी व्हीकल्स हैं जो टोटली लाइफ टाइम टैक्स एग्जाम्प्टेड हैं, जैसे कि एम्बुलेंस व्हीकल्स जब इंपोर्ट होती हैं तो कस्टम फ्री होती हैं, तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड हैं? थैंक यू। देखिए जी, एग्जेम्प्टेड टैक्स एग्जेम्प्टेड में डिसेबल लोगों की जो गाड़ी डिसेबल के नाम पर इंपोर्ट होती है, दोज पीपल आर एग्जेम्प्टेड। एम्बुलेंसेस जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, या जैसे अगर किसी फाउंडेशंस की हैं या कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट जो चैरिटी का काम करते हैं, उन सबको एग्जेम्पशन दी जाती है, मगर वो भी एक प्रोसेस के थ्रू। दे राइट अ लेटर टू अस, हम लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, उसके बाद एग्जेम्पशन अलाउ करते हैं। अगर हम फील करते हैं कि इनको एग्जेम्पशन ना दी जाए तो हम नहीं देते। जी, मारवी साहब। शुक्रिया सर। सर, मेरा सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से है। पहले तो मैं तारीफ करूंगी, माशाल्लाह आपका मूड बड़ा अच्छा है, नजर ना लग जाए फिर मेरा आप। मूड हमेशा अच्छा होता है, आप लोग खराब करते हो। सर, हमारी कोशिश तो यही होती है कि मूड खराब ना हो, पर फिर भी ऐसे हालात पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। आई एम ऑलवेज इन अ गुड मूड। आई अप्रिशिएट। सर, मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से यही है कि यहाँ पे नंबर 9 में लिखा हुआ है ट्रैक्टर्स यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, उस पे जो ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी है, 1250 रुपए है। सवाल भी यही है, और क्या मिनिस्टर साहब, क्योंकि खेती बाड़ी या जो हमारे जो जमींदार हैं, जमींदारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर ये ड्यूटी, स्पेशली वो ट्रैक्टर्स वो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, उससे या तो खत्म की जाए या तो फिर कम की जाए, क्या ये मुमकिन है मिनिस्टर साहब? सर, ये कोई सालाना फीस नहीं लिखी, अगर मेरी बहन पढ़े तो ये ट्रांसफर फीस है। अगर मैं अपना मतलब ट्रैक्टर बेचूं इधर किसी और जिम्मेदार को, तो वो ट्रांसफर फीस है, वो 1250 रुपये, आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो इक्का दुक्का ट्रैक्टर ये आते हैं जो बिकते हैं, अदरवाइज जो जिम्मेदार के पास जो ट्रैक्टर होता है वो तो लाइफ टाइम ही चलता रहता है, एंड वो और खरीदते हैं, बेचते नहीं है ट्रैक्टर से। जी, निदा खोड़ो साहब। सर, मेरा ये सवाल है मिनिस्टर साहब से कि ट्रैक्टर ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकेकार है? इसमें ट्रैक्टर रजिस्टर होता है या ट्रॉली भी रजिस्टर की जाती है? ट्रॉली रजिस्टर नहीं होती है, ट्रैक्टर ही रजिस्टर होता है। जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगेगी तो वो नंबर प्लेट उसके पीछे वही लगेगी। ट्रॉली वो ट्रैक्टर से नंबर प्लेट निकाल के आप ट्रॉली के पीछे लगा देंगे? सर, रजिस्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे से निकाल के ट्रॉली के पीछे लगा देंगे। फ्रंट पर नंबर प्लेट लगेगी, ठीक है सर, एक ट्रैक्टर के पीछे, और अगर वो चाहे तो थर्ड नंबर प्लेट भी हम इशू करते हैं, अगर वो परमानेंट उस ट्रॉली पर लगाना चाहे तो। जी, हीर सुहो साहब। थैंक यू सर। सर, मुझे सवाल है तो रक्षा जी की फीस लिखी है 800 रुपीज़ रक्षा जी। सर, जेका लास्ट क्वेश्चन तव्हां हली वियो आहे उन में सिर्फ़ु तव्हां 3 शयूं मेंशन कयूं आहिनि, कार्स, बसिस ऐं मोटरसाइकिल्स, ऐं जेके ॿियूं तव्हां हिन में सेकेंड कैटेगरी में जेके तव्हां लिखियूं आहिनि, इन्हनि खे मेंशन न कयो वियो आहे त इन्हनि जी केतिरी टैक्स कलेक्शन थिए थी। लेकिन जेको ट्रैक्टर वठे थो या रक्षो वठे थो या मोटर कार वठे थो, त उन जी बि रजिस्ट्रेशन हूंदी ऐं टैक्स कलेक्शन हूंदी। उहा टैक्स कलेक्शन जेकी आहे उहा जेका लास्ट क्वेश्चन उन में मेंशन न कई हुई आहे, त टोटल अमाउंट तव्हांजो कलेक्शन थियल आहे या ही फिगर छाजे करे एड कोन कई वई आहे, उनखे थोरो डिफाइन कंदा? तो सवाल ही रिगार्डिंग उन गाड़ियुनि जे हवाले सां हुयो, यो ट्रैक्टर्स एंड आई थिंक आई विल जस्ट गो थ्रू इट, मगर तव्हांजो बिल्कुलु वैलिड पॉइंट आहे, मेंशन करणो हुयो, ऐं इन जो फिगर भी असां तव्हांखे वठी ॾियूं था, और टोटल अमाउंट भी ॿुधायूं था तव्हांखे। देखें कितना अच्छा चेंज है गवर्नमेंट साइड से भी, क्योंकि आप जवाब माशाल्लाह इतने अच्छे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट साइड से भी सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। जी, डॉक्टर सीमा साहिबा, टुडे इज लेडीज डे, सो लेट देम एंजॉय। जी सर, ये पहले बताते लेडीज डे, तो सब मर्द हजरात। जी, ये तो नहीं, सवाल जितना लेडीज करती हैं वो बहुत सीरियस सवाल करती हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सर, आप अनाउंस कर दिया करें जिस दिन लेडीज डे हो, ताकि हम फिर मर्दों को खड़े ही ना होने दें। नहीं, आप लोग सवाल किया करें ना, सवाल जवाब भी आप लोगों की तरफ से आते हैं। अच्छा सर, ये मेरा जितने मर्द हजरात बैठे हैं वो दूसरों के सवालों के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो अपने सवाल भूल जाते हैं। जी, ये सर, ये मर्द आपकी तो पुरानी आदत है। बड़ा गलत है जो करते हैं मर्द हजरात।
एनीवे सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड 2017-18 में जिसमें इन्होंने बताया कि नॉन कमर्शियल की इतनी कलेक्शन है, और इसमें SNTC सिंध गवर्नमेंट की कितनी गाड़ियां हैं और कितनी मोटर बाइक्स हैं, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कितनी रजिस्ट्रेशन की फी मिली है और मोटरसाइकिल की कितनी फी है? सर टोटल सवाल पूछा गया था, इसको अलग सवाल अगर ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से डालें तो मैं उस पर डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, मगर जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो सेम अमाउंट फिक्स होता है. आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर नॉलेज. एंड मेरे पास इस वक्त वो फिगर नहीं है कि कितनी सिंध गवर्नमेंट की टोटल गाड़ियां रजिस्टर हुई या उनका कितना टैक्स कलेक्ट हुआ इस साल के बारे में, बट आई विल गिव यू द डिटेल्स, आई विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स. मगर तरीकेकार सेम ही होती है. जो लोकल गाड़ी पर जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी सिंध गवर्नमेंट की गाड़ी पर भी वही लागू होगी. बाकी जहां तक कितनी गाड़ियां और अमाउंट, आई जस्ट प्रोवाइड यू विद दैट डिटेल. क्वेश्चन नंबर 1567 गजाला सयाल साहिबा. थैंक यू सर. क्वेश्चन नंबर 1567. आंसर में भी टेकन एज रेड. सर मुंहिंजो सवाल आहे मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन खां, त जेको बेड टैक्स होटलनि खां वरितो वेंदो उहो 2013 जे फाइनेंस एक्ट मुताबिक़ उहो ख़तम थी वियो. मुंहिंजो सवाल इहो आहे त हाणे इहो कहिड़ो डिपार्टमेंट आहे जेको होटलनि खां टैक्स वसूल करे? SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड. SRB वठे पियो असां खां कुछ टाइम पहिरियों बेड टैक्स जो जेको असां वटि हूंदो हुयो सिस्टम उहो सारो SRB पंहिंजे अंडर करे छॾियो आहे, जो हू कलेक्ट करनि था. त इन वक़्तु असांजो बेड टैक्स कीअं त तव्हां वठो? सिंगल बेड, डबल बेड? न सर, ऑक्यूपेंसी जे मथां हूंदो आहे. बेड टोटल जॾहिं असां वठंदा हुआसीं त इहो ऑक्यूपेंसी जे मथां हूंदो, जो केतिरी ऑक्यूपेंसी ठही आहे होटल में त उनजे रूम्स जे हिसाब सां डिवाइड करे पोइ टैक्स चार्ज थींदो हुयो. हाणे इहो SRB पंहिंजो अलाए एक्स्ट्रा बेड बि त हणी ॾींदा आहिनि होटल में? सर सब बेड ते वठंदा आहियूं सर. एक्स्ट्रा बेड, नॉर्मल बेड, हेवी बेड, सब बेड. ऑल काइंड ऑफ बेड्स? ऑल काइंड ऑफ बेड्स. जी सर नो सप्लीमेंट्री. बस तव्हां हिकिड़े ई सप्लीमेंट्री में ख़ुशि थी वियो. जी एनीबडी एल्स? बेड टैक्स पे किसी को बात नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 1638 अगेन रज़ाला सयाल साहिबा. सर क्वेश्चन नंबर 1638. आंसर में भी टेकन एज रेड. सर मुंहिंजो सवाल आहे मिनिस्टर साहब खां त एंटरटेनमेंट टैक्स जेके वरितो वेंदो आहे उहे सर जेॾीमहिल एंटरटेनमेंट टैक्स केॾीमहिल उहे मेच्योर थींदा आहिनि त तव्हां टैक्स वठणु शुरू कंदा आहियो? बाबा एक मिनट चुप करो. एंटरटेनमेंट टैक्स हर एक टिकट ते हूंदो आहे, जेको अगर अम्यूज़मेंट पार्क तव्हां वञो या कहीं भी थिएटर ते वञो ऐं किथे भी अगर सिनेमा ते वञो त उहो हिकिड़ो फिक्स हूंदो आहे अमाउंट टिकट जे मथां. तो जेतिरियूं डेली जूं टिकट्स यूज़ थींदियूं आहिनि या जेतिरा माण्हू विज़िट कंदा आहिनि तो हिन हिसाब सां असांजा अफ़सर उते ड्यूटी ते रखियल आहिनि सभु जायुनि ते, तो उन हिसाब सां कलेक्शन थींदी आहे. ॿियो सप्लीमेंट्री आहे जीअं तव्हां ॿुधायो त ड्रामा ऐं स्टेज सिनेमा में जेको टैक्स वसूल कंदा आहियो उहो सर प्रोडक्शन वारनि खां वसूल कंदा आहियो या उन्हनि जी इंतज़ामिया खां? ओनर्स खां, जेका इंतज़ामिया हूंदी आहे उन्हनि खां कंदा आहियूं. क्लियर ॿुधायो. सिनेमा जो जेको अगर जिथे टिकट सेल थिए थी तो सिनेमा जो जड़े ऑफिस में टिकट सेल थींदी आहे उतां वठंदा आहियूं. अगर कहीं अम्यूज़मेंट पार्क ते जिथे उन्हनि जो काउंटर टिकट जो आहे तो उते असांजा चार्जेस ऑटोमेटिकली थी वेंदा आहिनि, तो पोइ वरी पे ऑर्डर जी उहे असांखे मुहैया करनि था इन शयुनि खे. त सर ही तव्हां खां ॿियो सवाल मां इहो पुछंदमि त जीअं पार्क्स आहिनि उन्हनि ते जी एंटरटेनमेंट जी आहिनि उहे उन्हनि में ॿार जेके वेंदा आहिनि उन्हनि खां बि टैक्स जेको मुख़्तलिफ़ पार्क आहिनि जीअं वाटर पार्क आहिनि ॿिया पार्क आहिनि जिते उन्हनि तां इलाही सर फीस ॿारनि खां वरिती वेंदी आहे. जिधर भी एंटरटेनमेंट की चीजें होंगी उधर एंटरटेनमेंट टैक्स लागू है. हमारा सिर्फ टिकट की वैल्यू के ऊपर 20 से 25% हम लेते हैं उस पर. जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3,200 रुपए की किसी पार्क की टिकट है तो उसमें 800 रुपए हमारा टैक्स लगता है, तो वो टिकट 4,000 रुपए में बेची जाती है. तो हमारा टैक्स रेट जो है वो फिक्स्ड है. वाटर पार्क्स पर और अपना अम्यूजमेंट पार्क्स पर, ड्रामास पर अलग अलग कैटेगरीज में है, मगर वो फिक्स्ड रेट्स होता है हमारे. जी हमीर सिंह साहब.
अमीर सिंह साहब, आपने हाथ उठाया तो मैंने कहा शायद आप सवाल पूछ रहे, नहीं? आप किसी और को वेव कर रहे थे? जी, थैंक यू सर। सर मुझे सवाल है त कुछ जेके टैक्सेस आहिनि वो सिंध गवर्नमेंट वठे थी, कुछ पार्क्स ते एंटरटेनमेंट ते केएमसी डीएमसी भी कलेक्शन करे थी तो उहे छा कलेक्शन उहो भी प्रोविंस खे मिलंदी आहे या उहो उन्हनि जे अकाउंट में वेंदी आहे, इनखे थोरो वज़ाहत करियो सर। सिंध गवर्नमेंट जो हर एक पार्क्स ऐं अम्यूज़मेंट पार्क्स ते फिक्स्ड आहे टैक्स, उहा कलेक्शन ख़ाली असां पंहिंजी सिंध गवर्नमेंट जा जेकी शयूं लागू आहिनि उहे ई कंदा आहियूं। बाक़ी अगर डीएमसी या केएमसी जेको भी करे थी तो वो उन्हें जा इदारा कलेक्ट कंदा। जी, थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि जो आपने बताया कि टिकट्स की कलेक्शन में 20 से 25% आप लेते हैं, तो टिकट के रेट क्या सिंध गवर्नमेंट सेट करती है या वो पार्क के ऊपर होता है कि वो पार्क की इंतजामिया खुद करे? वो पार्क इंतजामिया खुद करती है, सिंध गवर्नमेंट अपना टैक्स का रेशो लेती है उस पर। थैंक यू स्पीकर साहब। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने एक जवाब दिया है कि अम्यूजमेंट पार्क्स पे तकरीबन 18 मिलियन रुपए कलेक्ट हुए हैं। तो ये अम्यूजमेंट पार्क्स की जो कलेक्शन होती है ये टिकट्स पे कलेक्शन है या कोई पार्क्स की कोई फिक्स ना टैक्सेशन भी है? और ये मुझे अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्शन डेटा बता दें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से अम्यूजमेंट पार्क्स है ये जो सिंध गवर्नमेंट में आते हैं, तो उसकी डिटेल्स मिल जाएं तो आई रियली अप्रिशिएट। डिटेल्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। हम लेते हैं टिकट के ऊपर फिक्स्ड होता है, हमारा टिकट्स के ऊपर फिक्स्ड होता है, दूसरी चीज़ों पर नहीं। एंड काफ़ी पार्क्स हैं, जैसे आपके अलादीन पार्क हो गया, जैसे आपका ऐसे काइंड के काफ़ी वाटर पार्क्स भी हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। तो उनकी सबकी पार्क में आप जाते हैं? उन सबकी मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। आप जाते रहते हैं पार्क में? मैं कहूँगा हम भी, आप और हम भी वॉक पे चलते हैं एक दिन। मैं और आप भी साथ चलेंगे वॉक पे। कौन सी पार्क जाना है सर? जो आप को कहे सर, आगे पार्क चलते हैं। इजलास के बाद चलते हैं। खुरमशेद जमान साहब, खुरमशेद जमान साहब। स्पीकर साहब, ये मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में डिफरेंट टैक्सेबल आइटम्स के अंदर इन्होंने बताया है, प्रिंट में बस ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे फेस्टिवल्स भी नजर आ रहा है। और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक फेस्टिवल सिंध गवर्नमेंट ने भी किया था जिसपे अंदाजन सिंध गवर्नमेंट का कोई शायद आई डोंट नो 1 अरब रुपए खर्च हुआ था, कितना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया था? ये सिर्फ प्राइवेट फर्म्स के लिए, अगर गवर्नमेंट अगर कोई किसी किस्म का फेस्टिवल कर रही है तो उस पर टैक्स होता है या नहीं होता है? और खासतौर पे जो सिंध फेस्टिवल आपने किया था, इस पे 1 अरब रुपए आपका खर्च हुआ था, उस पर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया था? जी सर, वो सिंध फेस्टिवल की डिटेल्स मैं भाई को दे देता हूँ। और जहाँ तक अगर कोई गवर्नमेंट का कोई फंक्शन होता है या कुछ है तो उसके लिए अगर वो एग्जेम्पशन इदारा मांगता है तो हम लॉ के तहत अगर एग्जेम्प्टेड, अगर वो टिकट सेल नहीं कर रहा, 2 चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट ड्यूटी में। एक सर होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल इदारे होते हैं जो चैरिटी के, अगर वो कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं या कोई फेस्टिवल करते हैं, उसके जितने भी पैसे कलेक्शन होती है तो वो एक चैरिटेबल इदारे को दे देते हैं, तो हम उनको भी एग्जेम्पशंस देते हैं। जो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, एनीथिंग विच कम्स अंडर कमर्शियल पर्पस, जिस पर सेल करे और वो इदारा प्रॉफिट बनाए, उस पर ये टैक्स लागू होता ही होता है। और अगर गवर्नमेंट कोई करती है, अगर वो बिल्कुल गवर्नमेंट तो चार्ज करती होगी लोगों को, मगर ये है कि वो अगर किसी नॉन कमर्शियल यूज में है, प्राइवेट है, तो उस पर हम लेंगे। अगर वो कमर्शियल कोई पब्लिक के लिए इंटरेस्ट की बात है, अगर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन मांगती है तो हम उस पर एग्जेम्पशन दे भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1738 राना अंसार साहब, फाइनली आपका सवाल आ ही गया। थैंक यू सर। सर मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1638 है जो पिछली मेरी बहन ने पूछा, और 1638 क्वेश्चन नंबर 1638 1738 नहीं आपका सवाल है 1738 1738 माय क्वेश्चन। जी
आंसर में भी टेक आप भूल गए अपना सवाल? नहीं, मैं भूली नहीं, मैं समझे कि मैं शायद मिनिस्टर साहब को, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्वेश्चन नंबर 1638 और मेरा वो नंबर तो हो गया ना, सेम ही है, सेम ही है, क्वेश्चन लगभग है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन मैं ये चाह रही हूँ The कि same thing. दोनों सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉपी पेस्ट हम दोनों की शायद हो गई है, या तो मैंने चीटिंग की है या उन्होंने चीटिंग की मेरे है। ख्याल है आपने और लेकिन एक बड़ा फर्क ये है रज़ाला कि सयाल साहबा ने मिलके ये बनाई लेकिन होगी। सर मिनिस्टर को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा तरीका है। सर लेकिन एक चीज है कि जो अमाउंट 1638 में दिखाया गया है और जो मैंने पूछा है वो दोनों डिफरेंट है। क्या वजह है कि दोनों के अमाउंट डिफरेंट है जबकि कैटेगरीज एक ही हैं? सेवन और इसी जो है ये मेरा सेकंड सप्लीमेंट क्वेश्चन ये होगा सर कि ये मुझे बताया जाए कि ये जो 6 नंबर पर आपने ये एक्टिविटी दिखाई है मेला, तो ये मेला कब मतलब कहाँ पर लगाए गए थे और इसके अंदर क्या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसके अंदर शामिल थी जो मेले लगाए गए और किन इजला में लगाए गए? आजकल मेले लगते हैं क्या? जी सर, डिफरेंट जगहों पर लगते हैं पूरे सिंध में। जैसे जैकमाबाद में तो मेले मशहूर हैं, बिल्कुल होते हैं, और इसमें कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं। जो चीज कमर्शियल होगी उस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगी। जो भी जखरानी commercial साहब को use के पता लिए- होगा जैकबाद का मेला लास्ट कब बिल्कुल, लगा था? मुमताज जखरानी साहब को पता है, सुराब खान सर्की साहब को पता है कि जैकाबाद का मेला बहुत मशहूर है, बहुत वहाँ मशहूर मेला है पे सर। जैकबाद में है, बहुत बड़ा मेला। जी, आप लोग घोड़े भी भगाते हैं, गधे भी हॉर्स एंड भगाते कैटल हैं? शो भी बड़ा मशहूर है उधर का, जैकमाबाद का सर। घोड़े, गधे और कैमल्स और वो क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स एंड कैटल शो। क्योंकि मुझे याद है जखरानी साहब जो है काफी पॉपुलर हैं उधर, और वहाँ पे बहुत एक्टिवली उनको प्रोजेक्ट करते हैं। Am I right? See, he is agreeing. जी जी, अदील साहब। थर्ड रह गया है। अच्छा, थर्ड है आपका? मैं जी, समझा आपने कहा बस खत्म। नहीं, मैंने सेकंड करने अच्छा, के बाद please, थर्ड मेरा पूछ है। लें, थैंक यू सर। मेरा है कि ये जो आपने लिखा हुआ है 4 नंबर पे ड्रामाज, स्टेज शोज और जो आपने कॉन्सर्ट करवाने हैं, तो ये जो ड्रामाज हैं ये स्टेज थिएटर हैं, जैसे हमारा हैदराबाद में रानी बाग में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज थिएटर्स होते हैं, ये उसी नौयत के हैं या जैसे विलियम शेक्सपियर के हुआ करते थे थिएटर्स पर? तो ये इन थिएटर से क्या मैसेज है, क्या इसके अंदर कितना टैक्स जो है वो हम कलेक्ट करते हैं? जो भी थिएटर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर वही मैंने बोला कि जो कमर्शियल पर्पस यूज के लिए होंगे उन पर टैक्स लागू होगा ही होगा। और कुछ ऐसे भी ड्रामास और स्टेज शोज होते हैं जो अमाउंट टिकट्स जब वो परचेज होती हैं और उसका जितना अमाउंट कलेक्ट होता है वो चैरिटेबल इदारों को भी जाता है। जब वो चैरिटेबल इदारों को जाता है तो उसको हम टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, क्योंकि दैट इज फॉर द गुड पर्पस। और जो कमर्शियल पर्पस है उस पर बिल्कुल हम लेते हैं, और वो एक फिक्स अमाउंट होता है। और डिफरेंट थिएटर्स, जैसे आपने हैदराबाद की बात की, तो उधर भी लागू होती है। जी, अदील साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि ये जो सैलून्स होते हैं, स्पास वगैरह और मुख्तलिफ जो कमर्शियल चल रहे हैं, और डॉक्टर संजय साहब भी बहुत जाते हैं, तो हमारे अंडर नहीं आते हैं ये सैलून्स वगैरह, हमारे अंडर नहीं आते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स है इस चीज के अंदर।
अम्यूजमेंट पार्क्स तो आते हैं ना, वो तो पहले सलून्स अम्यूजमेंट पार्क में कैसे होंगे? आप डायरेक्ट एक दूसरे से बात ना करें। सॉरी सर, सर सलून्स वगैरह पर हम नहीं लगाते हैं टैक्स, बाकी अम्यूजमेंट पार्क इधर उधर तो होता है टैक्स। The question hour is over. Well done, Honorable Minister. देखें, अगर इस तरह के आप लोग खुशी खुशी से प्यार मोहब्बत से सवाल जवाब करेंगे तो माहौल भी अच्छा होता है, और तैमूर साहब भी खामोशी से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं अपने फोन। प्लीज नो phones allowed in the house. So now, is there any leave application? Yes, sir. Leave application received from Honorable Member Muhammad Ismail Rao Saab due to attend conference Toronto University. Request leave for today's session, sir. Okay, now I move this application to the House. Those who are for the application may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the application is carried. Other leave application received from Honorable Member Raja Azhar Saab due to out of city. Request leave from 5th to 9th November, sir. Okay, now I move this application to the House. Those who are for the application may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the application is allowed. Bas? Now, is there any privilege motion? No, sir. No, any privilege. Now, there is adjournment motion number 10 of 2019 given notice by Khurram Sher Zaman Sahab. शुक्रिया सर। सर, मेरी आपसे एक गुजारिश है जनरल मोशन के सिलसिले में। ये सर दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट साइड ने जनरल मोशन को एक्सेप्ट किया था, जैसे कि एक लास्ट जो जनरल मोशन था वो था स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर, और कल के एजेंडा में सर उसके ऊपर बहस होनी थी। कल आपने इजलास ख़त्म कर दिया, उसमें बात नहीं हुई, और आपने क्योंकि सेक्रेटरी साहब को हुक्म नहीं करा कि अगले दिन आना है तो उन्होंने डाला नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर उसको बता दें उसका क्या सिलसिला होगा, क्योंकि दूसरी दफा ऐसा हुआ, इससे पहले स्ट्रीट क्राइम पे ऐसा हुआ, आप शायद बताना भूल गए। इस पर मैं आज और कल भी ऐसा हुआ कि स्टैंडर्ड ग्रोथ पे भी मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया था। फिक्स किया था ना मंडे की, कल फिक्स किया था, मगर टाइम शॉर्ट हो गया था तो इसलिए वो आया नहीं। आज प्राइवेट मेंबर डे का जो ऑर्डर ऑफ द डे आता है उसमें ये चीज नहीं आती है, तो नेक्स्ट जब नॉर्मल सिटिंग पे होगा तो उसमें ये चीज आएगी। सर असल वर्किंग डे पे रख लें। सर मेरी गुजारिश ये है कि सेक्रेटरी साहब ने लास्ट ये कहा था कि जब स्पीकर साहब कहेंगे कि नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि उससे पहले स्ट्रीट क्राइम का भी रह गया था, खुरम साहब तो इसमें स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शंस मिल जाए तो सेक्रेटरी साहब आइंदा डाल दें। कि आज प्राइवेट मेंबर डे है तो उस एजेंडा में आ भी नहीं सकता। ठीक है सर, ओके। देखें, आपको उसने भाई बना दिया ना खुरम भाई। सर जी General motion, sir. Sir, I move the proceedings of the Assembly be adjourned to discuss a definite matter of recent urgent public importance. There is presence of Congo virus cases in Karachi. The matter is of public importance and should be discussed on the floor of the House. जी मिनिस्टर साहब, ये कांगो वायरस के बारे में एडजर्नमेंट मोशन है सर। बिल्कुल सपोर्टिंग और यू आर अपोजिंग? अपोजिंग इट सर। यू आर सपोर्टिंग इट? अपोजिंग यू आर अपोजिंग इट, ओके जी। आप बताएं एडमिसिबिलिटी पे। सर अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस को अगर आप देख लें कि मिनिस्टर साहब जब अपोज करें तो साथ साथ वो रीजन भी बता दें, क्लॉज बता दें, तो फिर हमें आसानी हो जाएगी जवाब देने में। पे आ जाए ना, रूल 88 में चले जाए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं एडमिसिबिलिटी पे बात कर लूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो फिर आप बैठ जाए। ठीक है सर, इसकी एडमिसिबिलिटी में मैं बात करूंगा जी। सर इसमें लिखा हुआ है ए में, ए जनरल मोशन पे सर बेसिकली होता यह है कि हमें स्पीकर को कन्विंस करना होता है कि क्या रीजन है कि हम इससे जनरल मोशन को लेकर आए हैं, और जो सिटिंग मिनिस्टर है वो उसको अपोज कर रहे हैं, वो उसको अहम नहीं समझते, और हमारा काम है कि हमने सर आपको कन्विंस करना है। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, फैसला फिर आप कीजिएगा सर। इसमें ए में लिखा है, ए में लिखा सर कि इट शैल रेज एन इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। स्पीकर साहब डेफिनेट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि सर अगस्त के महीने के अंदर 10 लोग कराची के अंदर इंतकाल कर गए हैं कांगो वायरस की वजह से। अगर हुकूमत सिंध और हेल्थ मिनिस्ट्री ये समझती है कि 10 लोगों का मरना कांगो वायरस की वजह से इट्स नॉट एन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो सर आई कांट हेल्प इट। मेरा काम है इशू को रेस करना, आपके कानों तक पहुंचाना, इनकी मर्जी है, इन्होंने जितना पोस्ट करना है करते रहें, और हम जो है इश्यूज को रेस करते रहेंगे।
बी में सर लिखा हुआ है कि इट शैल रिलेट सब्सटेंशियली टू वन डेफिनेट मैटर. सर बिल्कुल ये एक अहम मामला है. इट्स जस्ट वन डेफिनेट मैटर जिसके ऊपर स्पीकर साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शहर कराची के अंदर कोंगो वायरस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. और सर सिर्फ इसी साल में स्पीकर साहब आपके तवज्जो चाहूंगा सर कि इसी साल में सर 39 केसेस जो हैं सर वो डिटेक्ट हुए हैं. और सर कोंगो वायरस वो चीज है कि अगर उसको सही तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया गया तो 10 से 40% चांसेस होते हैं कि उस शख्स ने मर जाना है. तो सर मैं समझता हूं कि इट्स वन डेफिनेट मैटर जिसको मैंने रेज किया है फ्लोर ऑफ द हाउस. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जो है इसमें इंटरवीन करके सीनियर मिनिस्टरों को बताएंगे कि ये कितना अहम है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि इसको बताया नहीं गया शायद इन्हें. सर सी में लिखा है कि इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस. नहीं, अगर हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा आपको कन्विंस करें कि व्हाट एक्शन शी हैज बीन टेकन, डेफिनेटली सर, and I'm sure you will withdraw this general motion. So I would request the honorable minister if she हेल्थ मिनिस्टर साहबा थोड़ा ब्रीफ करेंगे इनको. जी सर मैं कंप्लीट कर लूं सर. सर सी के अंदर लिखा हुआ है कि इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस. अब सर रीसेंट की बात हो रही है तो ये इतना रीसेंट है. सुन ले ना, सुन तो ले. जी ठीक. Thank you, Mr. Speaker. उसके बावजूद भी आपको अगर I think you're not happy तो you can go start again. जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपोज किया इसे, इट वाज इन अ केस बिकॉज जो है ये कॉन्गो वायरस जो है हेमोरेजिक फीवर, इट कॉजेज हेमोरेजेस इन, इट्स अ वायरस दैट इज इन्फेक्टेड बाय फ्ली एंड दिस अकर्स इन लाइफ स्टॉक. और लाइफ स्टॉक की जो है जो मोस्टली हैपन्स इन हैंडलर्स ऑफ लाइफ स्टॉक, वो बुचर्स और हर्डर्स ऑफ शीप एंड गोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और यहाँ काओ एंड बफलोज एक्सेट्रा. इसमें जो है स्पेशली ये हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब बकरा ईद होती है तो उसमें इनफैक्ट आई हैड आंसर्ड, इट वाज अपोज्ड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड during the season that the livestock was coming into Karachi and Sindh from Balochistan. So हमारे पास जो बलूचिस्तान से animals आते हैं unfortunately उसमें ये बहुत पाया जाता है. The flea is there, the virus is within the flea, and this is the vector that transfers the infection to humans because वो flea जब handle करते हैं तो flea की bite होती है, उससे virus आ जाता है उनके अंदर. हमारे यहाँ total 31 cases हुए हैं from January to November 2nd तक जो हुए हैं. एंड इसमें आप अगर देखेंगे तो स्पाइक हमारा जो आया है ऑफ 14 केसेस इट अकर्ड ड्यूरिंग बकरा ईद विच इज़ इन अगस्त. और इसमें जो है डेथ्स हमारी कोई 15 डेथ्स हुई हैं. 16 people were managed to be saved from this, and of this total अगर सेपरेट करें between the 23 cases that occur, 31 cases that occurred, उसमें 28 are male and 3 are female. और कराची में जो वायरस ये हुआ फैला है वो 23 पेशेंट्स में है. बाकी दूसरे जगहों से इतला आई हैं. मीरपुर खास में 2 हुए हैं, सांगड़ में 2, और एक दादू एक जामशोरो, एक थरपारकर, एक नौशेरो फिरोज में केस हुए. Now the problem is how to prevent Congo virus from infecting humans. वो यही होता है कि उसमें animals are sprayed and dipped in antiseptics to kill the virus, and there are medicines to spray the animals so that the flea is killed and the transmission of the virus does not occur in humans. बकरा ईद पे क्योंकि इतनी लाखों की तादाद में जानवर आते हैं, स्पेशली कराची में बहुत एंट्री होती है, तो उस वजह से अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ जानवर may be missed during the entry into the city. जो स्प्रेइंग करते रहते हैं especially where the selling points of these animals are. जो हमारी बकरा पीरी लगती है वहाँ भी स्प्रेइंग होती है, जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ भी स्प्रे होता है जानवर के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये मिस हो जाते हैं तो उससे ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. मेरे पास सारी डिटेल्स ऑफ ऑल द पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड ऑल्सो. अनफॉर्चुनेटली डेथ्स होती हैं बिकॉज इट कॉजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ हेमरेजिंग विद इन द बॉडी. ब्लड जो है ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग
होती है and the virus can be infected. The doctors who are handling these people can also catch the virus. So this is a disease that is there. It occurs seasonally, especially during seasons where अक्टूबर में हमारे पास 3 cases हुए. The sporadic cases एक दो होते रहते हैं पूरे उसमें, and mostly the peak occurs when there is Bakra Eid, when the large number of animals enter the city. हम livestock वाले जो हैं मुतवातर कोशिशें करते रहते हैं कि they spray all the animals that are available to them. Unfortunately, we cannot do anything in the health department apart from treating patients who are infected. और वो हम करते हैं. Infection हम prevent नहीं कर सकते. Livestock department has to do the spraying, and they are the ones who are responsible. But I think in spite of saying that, with all the amount of animals that are coming into the district, I think the numbers are still reasonably low and controlled जो हमारे पास in cases होते हैं. Every year we see this Congo virus occurring. It's not something that is कि इस दफ़ा ज़्यादा हो गए हैं पिछली दफ़ा कम थे. ये इसी numbers में रहते हैं मुतवातर, और हम कोशिश करते रहेंगे. I think we need to have a systematic, हमारे vets जो हैं उनको इस पे training देनी पड़ेगी. और हम unfortunately हमारे यहाँ farmers are not trained to take preventive actions in and protecting their animals from this infection of the flea. So ये हम actually normally हर जगह in advanced countries all animals are sprayed and dipped in the antiseptic in the farms. हम farms में नहीं करते. वो जब cities की तरफ travel करते हैं, unfortunately फिर वो viruses obviously infects the butchers and the people who handle the animals. So I think it is a matter that should be brought to the attention of the House, but I fail to see there are many more infectious diseases which are much more important, have more devastating effects. This is a devastating if it occurs, but fact of the matter is the numbers are not so numerous that we should take it as being an epidemic or an endemic, etc. It's just 1 or 2 cases occurring sporadically during the months and a spike during Bakra Eid. Thank you, sir. स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि उनका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिटेल में हमें सारी चीज़ें बताई. देखिए सर, ये मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाहिद मिनिस्टर हैं जो ट्रेजरी की साइड से मुनासिब जवाब देती हैं. ज़्यादातर जितने मिनिस्टर्स हैं वो जान छुड़ाते हैं. कम से कम इससे एक फीलिंग तो आती है कि हाँ इनके डिपार्टमेंट में शायद बेहतरी आ जाएगी. हेल्थ मिनिस्ट्री है और ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं अप्रिशिएट करूँगा. सर मेरी गुजारिश ये है कि सिंस मिनिस्टर साहबा ने बताया कि लाइफ स्टॉक के जो मिनिस्टर हैं ये उनके डोमेन में आता है, और इन्होंने इस बात से एग्री भी किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है. एक बात बस इन्होंने कही कि नंबर बहुत छोटा है डेथ्स का, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस घर के अंदर एक शख्स भी मर जाए तो उससे पूछा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है. तो सर अगर लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर अगर मौजूद हैं वो बता दें कि वो इसके लिए क्या करेंगे. वो तो नहीं है लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर. मेरा ख्याल है आई थिंक जिस तरह मिनिस्टर साहिबा ने आपको ब्रीफ किया है, if I was you, I would withdraw it. अगर आपको still you are not satisfied, मेरी गुजारिश ये है still you are not satisfied, तो then we will have to go through Rule 88. नहीं, मैं बात मुकम्मल कर लूँ सर. मिनिस्टर साहिबा ने कोई नेगेटिव जवाब नहीं दिया. उन्होंने इस बात को एग्री किया उन्होंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया, पूरी हिस्ट्री बता दी कांगो वायरस की. मैं आगे बात करूं क्यों आई, कैसे आई, किसके थ्रू आई. सर ये एजेंट मोशन इसलिए इस वजह से हाउस के अंदर आया है कि इसको डिस्कस किया जाए ताकि आने वाले दिनों, क्योंकि सर इसका नंबर सॉरी वो बढ़ती जा रही हैं. अब मिनिस्टर साहब ने खुद इस बात को माना है कि हाँ ये इशू है. अब इसको एजेंट मोशन में डिस्कस करने का मकसद ये है कि शायद कुछ लोग बच जाएं इससे, क्योंकि लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर भी नहीं है ना सर. No, but you're not satisfied with the honorable ministers. I am satisfied with her reply, but the concerned minister is not present in the assembly. उन्होंने ये कहा है कि मेरा डोमेन नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा सर कि देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको अभी आप विड्रॉ करें, फिर अगर आप समझते हैं कि और ये खराब होता है, इसका मसला होता है, और then you can bring back again. सर मैं माजरत चाहूंगा, मैं इसे विड्रॉ नहीं करूंगा. आप समझते हैं आ जाएं फिर. सर मैं इसमें अगर एक रिक्वेस्ट कर जाऊं, मेरे ख्याल में अगर इसको खुरम भाई बोल रहे हैं तो इसको डिफर करके अगर जब नेक्स्ट वर्किंग डे पर आता है वो अपना
लाइफ एंड स्टॉक्स का मिनिस्टर साहब आते हैं। से मेरे हिसाब से तो जो ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने जवाब दिया है बिल्कुल सर वो है, मगर अगर ये चाहते हैं कि लाइफ स्टॉक इससे ज्यादा बेहतर जवाब मुझे आई टोटली एग्री विथ यू सर, आई टोटली एग्री विथ यू, मगर अगर फिर भी मेंबर चाहते हैं कि इनको लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर आकर इसके ऊपर थोड़ी ब्रीफिंग दें, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। आई थिंक सर मेरे लिए एक शख्स भी सुबह सिंध का अगर मर जाना वो अहम है, एक शख्स भी। सर सबके लिए प्राइस ही नहीं है, 10 से 15 है। इंसान की जिंदगी की कोई प्राइस नहीं है। सर गुजारिश आप जरा बात सुन लें सर प्लीज। लेकिन बीमारियां तो होती हैं सर, गुजारिश है बात सुन लीजिए, बात सुन लें सर। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस लाइफ स्टॉक के जो मिनिस्टर हैं वो आके बता दें कि इसकी बेहतरी के लिए, इसके खात्मे के लिए वो क्या कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है मोशन को आगे करने की। वो अगर कल आते हैं, परसों आते हैं, आके बिल्कुल सही बता दें कि उन्होंने इसके लिए क्या किया। बिल्कुल सर, हम सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो डेथ्स हो रही हैं उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और हमें तसल्ली दे दें। नेक्स्ट वर्किंग डे। यस सर, ठीक है, फाइन, थैंक यू। been postponed for a next working day. Okay, now private resolution. Private resolution number 399. Given notice by Mr. Bilal Ahmed MPA Saab, he may please move his resolution. Thank you, Speaker Saab. मुकेश सर एक अमेंडमेंट हमने प्रपोज की है, वो करके भी वी आर सपोर्टिंग दिस रेजोल्यूशन। एक छोटी सी अमेंडमेंट बोली, अगर वो अमेंडेड पढ़ लें आप तो। ये वो मैं अमेंड पढ़ लूं, आप पढ़ेंगे? आप पढ़ लें, क्योंकि रेजोल्यूशन आपकी तरफ से, हम भी आपके नहीं, आपके पास है अमेंडमेंट है। वी आर सपोर्टिंग यू इन इट, ऐसी कोई बात नहीं जी। थैंक यू स्पीकर साहब। नहीं, पहले आप अमेंडमेंट पढ़े ना, जो अमेंडमेंट। मैं रेजोल्यूशन ही पढ़ रहा हूँ। This House resolves and recommends to the government of Sindh to immediately take appropriate from Karachi. This House, ये amendment है, the Sindh Solid Waste Management needs further from Karachi, and House recommends the government of Sindh to take steps for permanent solution. Okay, this is including the amendment. Yes, sir. We are. Okay, first I have to move this amendment to the House. We have to make a motion to this for this amendment. A motion move करें amendment के लिए. As this resolution as amended. As amended. Okay. And the amendment is Sindh Solid Waste Management, Karachi and House recommends the government of Sindh to take steps for permanent solution. Okay, now I move this motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Ayes have it, and this motion is carried. जी अभी आप उसको amended पढ़ें. Amendment resolution. This House resolves and recommends to the government of Sindh to immediately take appropriate and sustainable measures for collecting garbage from Sindh, Karachi. Sindh Solid Waste Management needs further improvement to collect waste from Karachi, and House recommends the government of Sindh to take steps for permanent solution. Sir, इस पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा. Okay, now I move this amended resolution to the House. Now whoever wants to speak, आप नाम दे दें, बोलें. नाम मुझे लिख के दे दें, जिनको आप शुरू हो जाएं पहले. Thank you, Speaker साहब. Speaker साहब, Sindh Solid Waste Management कराची में अभी भी 3 अजला जो हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उससे कचरा उठाती है. लेकिन अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है. जो आपके जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, जो बीओक्यूज फाइनल हुए थे, ये मेरे पास उसके सारे एग्रीमेंट्स की कॉपीज हैं. सर्विसेज एंड एसेट्स मैनेजमेंट एग्रीमेंट की कॉपी है, पूरी जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपीज है. तो उसकी क्लियर वायलेशंस हो रही हैं. जो बीओक्यूज और जो इसमें यूनिट्स और वो जो डिसाइड हुए थे उसमें बहुत सवालियात हैं. क्योंकि अगर आप सिर्फ डीएमसी ईस्ट का देखें, मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का आपके सामने बात करता हूं, क्योंकि अगर मैं सारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी. इसमें इन्होंने बीओक्यूज में लिखा हुआ है
कि ये 3,22,357 टन एक साल में उठाएंगे, जो बनता है 883 टन पर डे। लेकिन स्पीकर साहब हकीकत कुछ और है कि यहां से 883 टन नहीं निकलता, बल्कि 1200 से 1400 टन जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से निकलता है। तो जब आपके BOQs जो हैं वही उसी में कंफ्यूजन है, उसी में फ्लॉज हैं, तो कराची का कचरा किस तरह साफ होगा? अब आप आगे चलें तो इसमें जो यूनिट प्राइस लिखी हुई है, मजेदार जो बात लिखी हुई है स्पीकर साहब वो ये है कि चाहे छोटा केबिन आपका बिन हो या कंटेनर है या बड़े जो है ना कंटेनर्स हैं, उन तीनों की एक ही यूनिट प्राइस है। हाउ इज इट पॉसिबल स्पीकर साहब? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रिविजिटेड। आपके इसमें जो प्राइसेस लिखी हुई है कि जो 0.6 से 1.4 मीटर क्यूब की जो बिन है, एक 1.4 से जो 2 मीटर क्यूब है, 3.4 से लेके 4 मीटर क्यूब है, सबकी एक ही प्राइस है। ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो इसमें जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें क्या पैरामीटर्स फाइनलाइज किए गए हैं कचरा उठाने के लिए, क्योंकि कराची में इतना बैकलॉग है। जो पिछले दिनों खुद जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास तकरीबन 3 मिलियन टन से ज्यादा कराची में बैकलॉग है। तो ये किस तरह साफ होगा? क्योंकि आपके जो सिस्टम्स हैं, जो इस इदारे को जो काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। 12 साल के बाद सुभाष सिंह की गवर्नमेंट को यह याद आ गया कि कराची से कचरा उठाना है, जिसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट को 50 मिलियन रुपए दिए गए। ये क्यों 50 मिलियन दिए गए? क्योंकि ये काम तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था। क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी साबित हुई, तो उनकी नाअहली को छुपाने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स की मदद ली गई और हर डिस्ट्रिक्ट को 50-50 मिलियन रुपए दिए गए। ये 30 करोड़ रुपए जो दिए गए पिछली जो कराची कैंपेन को क्लीन करने के लिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब उसके लिए ऑलरेडी एक अथॉरिटी मौजूद है तो साइमल्टेनियसली पैरेलली यही पैसे जो आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दे रहे हैं वो दूसरी अथॉरिटी को क्यों दिए हैं? तो ये सिर्फ सिंध सॉलिड में वेस्ट मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको छुपाने के लिए है। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंग बात सुने कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें कुछ KPIs हैं और उस KPIs को 1 जून हर फिस्कल ईयर की 1 जून को उसको रिविजिट करना है कि क्या जो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, क्या जो हमारे टारगेट्स थे वो पूरे हुए हैं। मुझे बताया जाए, इस हाउस को बताया जाए कि क्या इकदाम किए गए हैं कि इस इदारे की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए। को और क्या क्या काम करना था, इसको मैनुअल क्लीनिंग कर दी थी। क्या हम देखते हैं कि कराची में मैनुअल स्वीपिंग होती है? मैं तो आज तक नहीं देखा कि आपके जो है ये मैनुअल स्वीपिंग हो रही है। आपकी गलियां, मेन रोड जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला सफाई करते हुए आपको दिखाई दे जाए। पॉलीथीन बैग्स, हर रेसिडेंट को पॉलीथीन बैग्स है ना प्रोवाइड करने थे। मुझे तो आज तक नजर नहीं आता कि जो इलाके वाले हैं, जो रिहायशी हैं, उनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से पॉलीथीन बैग्स न दिए जाएं। क्या क्राइटेरिया है, क्या मैकेनिज्म के तहत आप कंटेनर्स हैं, किस चीज उसका क्या मैकेनिज्म है? क्या आप पर यूसी और बॉडी मरबा तो ये होता है कि जहां क्या जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर है उसके कोई इश्यू है, पेमेंट नहीं की गई उनको। मैं उसके दूसरे
कॉन्स्टिट्यूंसी से ही आपका ताल्लुक है, आप देख लें उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कचरा है। लोग अब ये कहते हैं पानी भूल जाएं, हेल्थ फैसिलिटीज भूल जाएं, एजुकेशन भूल जाएं, कचरा तो उठा के दे दो हमें। ये लोगों की अब डिमांड हो गई है कि इस कचरे की वजह से आपके डेंगू के वायरसेस, टाइफाइड और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां आपकी कराची में हो गई हैं। मैं बजट रिपोर्ट देख रहा था इस बार की, तो कुछ पैसे रखे गए थे जिसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बननी थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कराची तक क्यों है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जिसकी इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बननी थी, सर्वेज होने थे, आज तक उन सर्वेज नहीं हुए, आज तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नहीं बनी। जो दूसरे जीटीएस बनने थे, अभी तक उन जीटीएस के आइडेंटिफाई नहीं हुए। अब मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो गुलशन जोन है उसमें कोई जीटीएस नहीं है। अभी जो इन्होंने कैंपेन शुरू की थी उसमें उन्होंने टेम्पररी जीटीएस बनाए थे। कोई नोटिफाइड जीटीएस ही नहीं है कि जहां पे कचरा फेंका जाए। तो आखिर कब तक हम इस कचरे पे सियासत करते रहेंगे? हम नहीं चाहते कि इस पे कोई सियासत हो, लेकिन जिसका काम है वो काम तो करे। जब हम कहते हैं 12 साल से हुकूमत सिंध ने परफॉर्मेंस करने में नाकाम हो जाती है, तो उनको 18वीं तरमीम भी याद आ जाती है और फिर दूसरी बातें भी आ जाती हैं कि वफाक हमारे डोमेन में आके बातें करती है और हमारे डोमेन में आके मदाखलत करती है। तो मैं इस हाउस से रिकमेंड करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इस रेजोल्यूशन को मुत्तफिका तौर पे पास की जाए और मेक श्योर किया जाए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उनकी जो बेसिक जो उनका काम है कचरा उठाना, वो कचरा उठाए। क्योंकि अब मसला ये हो रहा है कि जहां कचरा जमा होता है वहां पे लोग है या वहां की जो रिहायशी हैं या कोई कचरा जो कलेक्ट करते हैं वो उस पे आग लगा देते हैं। पिछले दिनों भी है ना, काफी इंसिडेंट्स हुए। कल मेरे हल्के में इंसिडेंट हुआ, वहां पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया, वो फायर ब्रिगेड लेके और उसने आग बुझाई। ये आपको रिपीटेड है ना, ये आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से, क्योंकि सीएम साहब के खुद इसके बोर्ड के चेयरमैन है, कि वो उसको देखें कि क्या वजूहात हैं कि एक इदारा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा और जो उनसे तवक्कुआत थी उस तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सक रहा। थैंक यू सो मच। जी आप बात करना चाहेंगी? जी नाम दिए मैं मैडम। मैडम, मुझे तो बात करते हुए हंसी भी आ रही है। और मैडम स्पीकर, आप अंदाज़ा लगाएं कि सन 2019 के अंदर दुनिया के अंदर एक मुल्क है पाकिस्तान और उसमें एक शहर है कराची, जहां पे करारदाद वो ये लेकर आई जा रही है कि शहर को साफ किया जाए सही तरीके से। मैडम, ये बड़ी शर्म की बात है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे लिए शर्म की, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, हम जितने मेंबर्स हैं, कि जो हालात इस वक्त शहर के अंदर चल रहे हैं सूबे सिंध के अंदर, जो सफाई सुथराई का निज़ाम है मैडम स्पीकर, वो इतना बुरा है कि हम उसको तस्वर नहीं कर सकते हैं। और हमारे दीन में कहा जाता है कि सफाई जो वो निस्फ ईमान है, सुन्नत है, उस जगह को साफ करें, साफ सुथरी जगह रखें। लेकिन मैडम स्पीकर, मुझे नहीं पता कि ये रेजोल्यूशन, मैंने ऐसा फील किया कि गवर्नमेंट साइड ने कुछ अपनी अमेंडमेंट्स दिए हैं और गवर्नमेंट का बड़ा इंटेंशन है कि वो शहर को साफ करना चाहती है। मैडम स्पीकर, 11वां साल चल रहा है आपकी हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का 11वां साल या 12वां साल शायद शुरू हो गया है। चौथी दफा इक्तदार के अंदर आप आए हैं और आज भी मैडम स्पीकर हम ये बात कर रहे हैं कि हम शहर को साफ किस तरह करें। मैडम स्पीकर, आज से 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट की थी, क्लीन माए कराची। और माए सुनते हुए तो मुझे हैरत हो रही थी कि माए समझते हैं नहीं समझते। एक बात उसके ऊपर मैं मैडम स्पीकर करना चाहूंगा कि बिलाल का ये रेजोल्यूशन है, उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए दिए हर डिस्ट्रिक्ट को 5-5 करोड़ रुपए दिए। और जो फॉर्मर मिनिस्टर साहब थे लोकल गवर्नमेंट के, वो बड़े फखर से असेंबली में खड़े होकर बताते थे कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम साफ कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट साउथ है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। बाकी तो सेंट्रल और फला तो सारे मेयर की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं हैरान हूं कि आपने तो वैसे भी करोड़ों रुपए डॉलर्स की शक्ल में ऑलरेडी एक प्राइवेट फर्म को आप दे रहे थे,
تو آپ واپس جو ہے 5-5 کروڑ روپے آپ نے ساؤتھ کے ڈی سی کو کیوں دیے, آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈی سی کو 5 کروڑ روپے کیوں دیے؟ کیونکہ وہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بار بار آپ اور آپ کے چیف منسٹر یہ کہتے تھے کہ یہ 2 ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر رہے ہیں, وہ سارا غلط تھا, وہ سارا جھوٹ تھا. اگر سی ایم صاحب سچ بول رہے تھے تو وہ 5-5 کروڑ روپے آپ کے چلے گئے سارے کرپشن کے اندر, کیونکہ سالڈ ویسٹ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں, 2 ڈسٹرکٹس کو صاف کر رہا ہے بقول آپ کے. میڈم اسپیکر, آج جو پورے شہر کے اندر ایک بہت بڑی شکایت ہے, ہر گھر کے اندر کتے بہت ہو گئے. بولے رات کو سو نہیں سکتے ہیں کتے, نماز کے لیے فجر میں نکلیں تو کتے بھاگتے ہیں, پیچھے کاٹتے ہیں, بچوں کو کاٹ رہے ہیں. کتوں کی وجہ سے جو ہے نا کتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ دوائیاں ہاسپٹلس میں اویلیبل نہیں ہیں. یہ کتے کیوں ہیں میڈم؟ یہ کتے پورے شہر میں اس وجہ سے ہیں کہ پورے شہر کے اندر جگہ جگہ کے اوپر کچرا پڑا ہوا ہے, اور وہ سارے جنگلی کتوں کے لیے ان جگہوں کے اوپر سارا کھانا کھانے کے لیے اویلیبل ہے. اگر آپ شہر کو صحیح طریقے سے صاف کریں گے تو آپ کو یہ جنگلی جانور سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے گھومتے ہوئے ساری رات بھونکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور فارمر منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا آج سے 7-8 مہینے پہلے کہ ہم تو ان کو انجیکشن لگائیں گے, انجیکشن لگانے سے پتہ نہیں ان کی سسٹم ہی سارا کلوز ہو جائے گا. اسپیکر صاحب نے کہا 2 سال پہلے, جب 3 سال پہلے میں نے یہ ریس کیا تھا, بولا اس کو ویتنام میں ایکسپورٹ کر دیں گے. تو میڈم اسپیکر, یہ جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے, اس کی وجہ سے پورے شہر میں ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں, ڈاگ بائٹس کے بہت سارے ایشوز ہیں, سینیٹیشن کے ایشوز ہیں. میڈم اسپیکر, میں آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ بات بتا رہا ہوں کہ دا اونلی ریزن اس مسئلے کے پیچھے اس کرپشن, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چیک کرایا جائے, معلوم کیا جائے جو کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں فرم کو, پرائیویٹ فرم کو, وہ کیا کام کر رہی ہے. ان کے ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈور ٹو ڈور گاربیج کلیکشن ہوتی ہے. میڈم اسپیکر, بلال غفار صاحب بتا رہے تھے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رہتی ہیں, آپ کے گھر میں آج تک سالڈ ویسٹ نے آ کے گھنٹی بجائی کہ میں کچرا لینے آیا ہوں, مجھے کچرا دے دو؟ نہیں آیا ہوگا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر یہاں پہ ہمارے بہت سارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں رہتے ہیں, میں سی بی سی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے گھر میں آ کے کسی نے آج تک سالڈ ویسٹ نے آ کے کچرا کلیکٹ کیا نہیں کیا ہے کلیکٹ. آپ کی بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ سالڈ ویسٹ کی, ایک کلفٹن کا گراؤنڈ ہے بورڈ بیسن پہ, وہاں پہ ساری پارک ہے, وہ زنگ کھا رہی ہیں, ان کے ٹائروں میں ہوا بھی نکل گئی, فلیٹ ہوئے ہوئے. آپ کے ہزاروں کی تعداد میں جو ڈسٹبنز ہیں وہ بلاول ہاؤس کے سامنے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے, دعا ریسٹورنٹ کے سامنے, وہاں پہ آپ کو ڈھیر سارے جمع ہوا پڑے ہیں. تو میری گزارش میڈم اسپیکر یہ, میں اپنی اسپیچ ختم کر رہا ہوں, کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے چوتھے دور کے بعد 12ویں سال کے اندر بھی ہم اس ایوان کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شہر کے اندر صفائی کا نظام ٹھیک کر دیں. میڈم اسپیکر, یہاں پہ جتنے بھی فارمر منسٹرز آئے ہیں سب نے کہا, میں اگر نام لینا چاہوں تو اویس مظفر ٹپی صاحب وہ گئے, ان کے بعد ناصر صاحب آئے, ناصر صاحب گئے, اس کے بعد جام شورو صاحب آئے, سی ایم صاحب نے ایک سپیچ کے اندر اسکرین کے اوپر پورا نظام بتایا کہ ہم کس طریقے سے گاربیج کی کلیکشن کریں گے. جب تک یہ گاربیج کلیکشن کا سلسلہ آپ لوکل باڈی کو ٹرانسفر نہیں کریں گے, جب تک یہ کونسلرز اور یہ میئر کے پاس یہ سارا سلسلہ پورے شہر کا نہیں جائے گا, آپ کا شہر میڈم اسپیکر نہیں صاف ہو سکتا ہے. بہت سارے ممالک دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کا 85 to 90% جو ان کے گاربیج کو ری یوز کیا جاتا ہے, ری سائیکل کیا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ دنیا سے اس کچرے سے بجلی بنائی جاتی ہے.